Very good morning, dear students. Welcome to our e-learning classes. This is your commerce class, and today we will know about you in BA Unit 3 Business Service 2. In Unit first, you studied about business services first. In undercoming postal services and insurance like general insurance, life insurance. So in business services first you studied more thing about insurance and postal services, and today we will know about business services too. In business services too, our topic is banking services. So we will know in detail about banking and bank. Okay, so bank. The first bank of the world in Geneva in the year 1407. अपने वर्ल्ड में जेनेवा में सबसे पहला बैंक जो आया था वो 1407 में आया था. ओके, बैंक इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड बैंको. बैंक जो है वो इटालियन वर्ड बैंको से ये वर्ड आई है, इटालियन वर्ड बैंको से, जिससे कि बैंक वर्ड बना है. ठीक है, so bank is derived from Italian word banco. Okay, and now we will know the meaning of bank. What is bank? Okay, okay. So what is the meaning of bank? According to the Reserve Bank of India, bank is an institute which collects deposits in order to lend them with condition to return it at the end of the year. Okay, so according to the Reserve Bank of India, bank is an institute, okay, which collects deposit in order to lend them, okay, to lend with condition to return it at the end of the year. Okay, so bank क्या है? There are many types of bank, like commercial bank undercoming RRB, and public sector bank, private sector bank. So so many banks are available in our India and foreign also. So बैंक, कुछ दिन पहले कुछ बैंक जो थे वो मर्ज हो गए थे, जैसे कि देना बैंक एंड विजया बैंक, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गई थी. लाइक इलाहाबाद बैंक जो है वो इंडियन बैंक में मर्ज हो गई थी, एंड मेनी बैंक्स आर मर्ज्ड. कुछ दिन पहले बहुत सारे बैंक एक दूसरे में मर्ज हो गई थी. ठीक है, सो we will know in this class we will know the functions of bank. Okay, so functions of bank can be divided into two parts.
First is main functions and second is subsidiary functions. So today we will know in detail about the main functions of bank. So main functions of bank. There are main functions of bank is 4 types of main functions, like to accept and collect deposit, second one is to lend money, third one is to invest, and fourth one is to interbanking transaction. So first is main functions of is to accept and collect deposit. Okay, so for example आप एक व्यक्ति हो जिसकी मंथली इनकम है आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसकी मंथली इनकम है 1 लाख, ओके, और आपकी एक्सपेंसेस कितने हैं 20,000 है. तो आपके पास क्या होता है कि 80,000 रुपये आपके पास मंथ में आप बचा लेते हो, सेविंग कर लेते हो. तो आप उस रुपये का क्या करोगे? आप अगर 80,000 रुपये 80,000 को अपने घर में रखते हो तो क्या हमारा रुपया बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ेगा. अगर आज 80,000 है तो कल भी हमारा 80,000 ही रहेगा. 1 ईयर बाद भी अगर उसको हम घर में रखें तो 80,000 ही रहेगा. तो हमारा रुपया हम जैसे रखेंगे घर में, जैसे रखेंगे उतने का उतने ही रह जाएगा. लेकिन अगर उस मनी को, उस 80,000 रुपये को अगर हम उसे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, बैंक में जमा करते हैं, तो हमें वहाँ पे क्या होगी? बेनिफिट होगी. बेनिफिट कैसे होगी? तो बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी. हमें उस मनी का जो रेट फिक्स्ड होंगे उस रेट पे हमें बैंक जो है वो हमें क्या इंटरेस्ट देगा. तो वहाँ पे हमारा पैसा क्या होगा? वहाँ पे हमारा पैसा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मनी हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में. So the first functions of the bank is to accept deposit and collect deposit. जो कस्टमर मनी को डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, तो बैंक क्या करती है? उसे एक्सेप्ट करती है, उसे कलेक्ट करती है और उसके बदले में हमें उस एक रेट पे, एक निश्चित रेट पे हमें वो इंटरेस्ट देती है उस मनी का. ओके, सो टू एक्सेप्ट एंड कलेक्ट डिपॉजिट. सेकेंड वन इज टू लेंड. एंड सेकेंड फंक्शन क्या है बैंक का? टू लेंड. हमें अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये है, और आपको क्या करना है कि आप एक कार खरीदना चाहते हो. तो अब आपके पास पैसे हैं नहीं. अब अगर आपको कार मिलते हैं 4 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में, और आपके पास ओनली 50,000 है और आपको कार चाहिए, तो आपके इतने पैसे आप कहाँ से लाओगे? आप एट ए टाइम उतने रुपए कहाँ से लाओगे? तो वहाँ पे हमें क्या होती है कि बैंक जो है वो हमें पैसे देती है. वहाँ पे हम बैंक से पैसे ले सकते हैं. तो टू लेंड, तो हम कैसे ले सकते हैं? तो थ्रू अ लोन.
हम लोन के माध्यम से लेते हैं, हम लोन ले सकते हैं बैंक से। लोन में मेनी टाइप्स ऑफ लोन आर अवेलेबल इन बैंक लाइक एजुकेशन लोन, कार लोन, हाउस लोन एंड मेनी अदर्स लोन आर अवेलेबल इन बैंक। अगर आपको कार खरीदनी है, आपके पास 50,000 रुपये है, तो आप बैंक से क्या कर सकते हो, आप लोन ले सकते हो और आप कार परचेज कर सकते हो। अगर आपको घर लेने हैं, आपके पास अगर आपकी घर लेना चाहते हो, वो घर अगर 25 लाख की है, 30 लाख की है और आपके पास 5 लाख है, तो आप वहाँ पर भी बैंक से लोन ले करके आप घर खरीद सकते हो। ठीक है, तो बैंक हमें लोन क्यों देगी, बैंक हमें उधार क्यों देगी, ऐसे तो नॉर्मली दे नहीं देगी हमें। तो यहाँ क्या होता है कि जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, तो बैंक जो हमें पैसा जो हमें देती है, इंटरेस्ट देती है, तो वो रेट क्या होता है, हमारा कम होता है। बैंक जो हमें इंटरेस्ट देती है, हमने जो मनी डिपॉजिट किया है उसके बदले में, तो वहाँ पे इंटरेस्ट क्या होता है, कम होता है। बट अगर बैंक से हम उधार लेते हैं, अगर हम लोन लेते हैं, तो वहाँ पर वो हमसे इंटरेस्ट ज़्यादा लेती है, तो वहाँ पे बैंक को क्या होती है, प्रॉफिट होती है। सो हमारा ये पैसे हमें वो इंटरेस्ट कम देते हैं और वो हमसे इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं यहाँ, तो यहाँ पे बैंक को एक प्रॉफिट होती है। ओके, एंड थर्ड फंक्शंस ऑफ बैंक इज टू इन्वेस्ट। बैंक क्या है, मनी इन्वेस्ट करती है। बैंक मनी इन्वेस्ट कहाँ करती है, अकॉर्डिंग टू द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसे जिस तरह से किसी इंश्योरेंस में या किसी भी तरह की इंश्योरेंस में उसे मनी इन्वेस्ट करने को किसी भी अदर बैंक को RBI ऑर्डर देता है, तो उस हिसाब से मनी वहाँ पे अदर बैंक जो है वो मनी इन्वेस्ट करते हैं और उस हिसाब से उसे प्रॉफिट मिलती है। निश्चित समय के लिए ही करते हैं, एक सर्टेन टाइम होती है, एक निश्चित समय के लिए वो मनी इन्वेस्ट करता है बैंक। ओके, एंड फोर्थ फंक्शन ऑफ बैंक इज फोर्थ फंक्शंस ऑफ बैंक इज टू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इंटर बैंकिंग, इंटर मतलब कि अगर बैंक के अंदर में एक बैंक से दूसरे बैंक मनी ट्रांसफ़र होती है, एक बैंक से दूसरे बैंक के आपस में ही अगर मनी की ट्रांजेक्शन होती है, वो हमारा इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो गया। अगर किसी बैंक में शॉर्टेज ऑफ मनी है, कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि यस बैंक की क्या हो गई थी, शॉर्टेज ऑफ मनी हो गई थी, तो वहाँ पे ये फंक्शंस जो है इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ये फंक्शंस वहाँ पे उसे काम आई होगी, वो क्योंकि उसे शॉर्टेज ऑफ मनी थी, तो अदर बैंक ने उसे मनी अवेलेबल किया होगा, मनी दिया होगा जितने की उसे ज़रूरत रही होगी, उतना अदर बैंक यस बैंक की मदद की होगी। और एक इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन में एंड सेकेंड थिंग इज़ इंटर बैंकिंग में ये होता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेफ्ट, ओके, एंड RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS एंड अकॉर्डिंग टू द नेफ्ट में क्या होता है कि अगर हम पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं दूसरे बैंक अकाउंट में, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, तो वहाँ हमारा वो नेफ्ट हो गया, जो कि इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन के अंदर आती है। ओके, सो दिस ऑल आर द मेन फंक्शंस ऑफ बैंक। फर्स्ट वन इज टू एक्सेप्ट, कलेक्ट एंड डिपॉजिट्स, टू लैंड एंड टू इन्वेस्ट, एंड फोर्थ वन इज टू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन।
Our next topic is types of bank account. There are mainly 4 types of bank account. First one is saving account, second one is current account, third one is recurring account, and fourth one is fixed account. First is saving account. I think you know about a saving account. ये कोई भी इंडिविजुअल पर्सन सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है बैंक में जा कर के। तो ये सेविंग अकाउंट क्या है कि कोई अगर हमारे पास मनी है, अगर मनी हम सेव कर रहे हैं तो उसे हम इंडिविजुअल भी ओपन अकाउंट ओपन करके हम इंडिविजुअल भी वहाँ मनी सेव कर सकते हैं, और हम ग्रुप में भी वहाँ हम ग्रुप अकाउंट भी हम वहाँ खुलवा सकते हैं, ओपन करा सकते हैं, और वहाँ भी हम मनी सेव कर सकते हैं। तो वहाँ हम मनी सेविंग अकाउंट में हम डिपॉजिट मनी क्यों करेंगे, तो वहाँ हमें क्या मिलता है, वहाँ हमें बैंक क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट में भी हो सकता है आपका अभी की जो इंटरेस्ट रेट है मे बी 3.4, किसी बैंक में 3.4% है पर ईयर, किसी बैंक में 4.4 है, 4.3 है। सो अकॉर्डिंग टू द बैंक इंटरेस्ट रेट जो है वो निश्चित किया गया है अकॉर्डिंग टू द बैंक। ओके, सो सेविंग अकाउंट में हम इंडिविजुअल और ग्रुप में दोनों ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज करेंट अकाउंट। सो करेंट अकाउंट क्या होता है, ये करेंट अकाउंट कोई भी पर्सन इंडिविजुअली ही खोल सकता है, इंडिविजुअली ओपन करा सकता है, नहीं तो एक बिजनेसमैन ओपन करा सकता है। ये हम ग्रुप में ओपन नहीं करा सकते हैं। ग्रुप में कैसे होता है, जैसे कि आप हो और आपके पापा है, तो आप दोनों का अकाउंट एक हो सकता है, तो वो हमारा सेविंग अकाउंट में हो सकता है, ऐसा करेंट अकाउंट में नहीं हो सकता है। इसमें ओनली आप इंडिविजुअल करा सकते हो, नहीं तो एक बिजनेसमैन ही करेंट अकाउंट खुलवा सकता है। इसमें क्या है कि नो इंटरेस्ट, इसमें गवर्नमेंट हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देती है। करेंट अकाउंट में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बस करेंट अकाउंट में एक फैसिलिटी हमें मिलती है कि बैंक से हम ओवरड्राफ्ट मनी ले सकते हैं, हम कैश क्रेडिट ले सकते हैं। अगर हमारी वहाँ पे हमने वहाँ पे अगर अपना विश्वास यहाँ पे किया है, मनी हमेशा टाइम पे पेड किया हो या जमा किया हो, तो वहाँ पे हमें बैंक के द्वारा हमें ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट करेंट अकाउंट। थर्ड वन इज रीकरिंग अकाउंट। इसमें क्या है, रीकरिंग अकाउंट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बातें ये होती है कि इसमें आपको पर मंथ कुछ रुपए डालने ही पड़ेंगे, जो भी मनी निश्चित होगी कि हर महीने आपको डालने ही। ऐसा करंट में अकाउंट में नहीं है कि आपको हर महीने पैसे उसमें डिपॉजिट करने ही है। सेविंग में भी ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने डिपॉजिट मनी करनी है, बट रीकरिंग अकाउंट में ऐसा होता है कि आपको पर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट आपको उसमें डिपॉजिट करने ही पड़ेंगे, जमा करने ही पड़ेंगे। इन रिकरिंग अकाउंट क्या होता है कि सेविंग अकाउंट से हमें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलती है। जो भी सेविंग अकाउंट में जो भी रेट निश्चित किया गया है, उससे रीकरिंग अकाउंट में हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। अगर 3.4 है, अगर पर ईयर सेविंग अकाउंट में 3.4 या 4.4 है, तो रीकरिंग में क्या होगी कि सेविंग से ज़्यादा इंटरेस्ट की परसेंटेज मिलती है। जैसे उसमें 3.4 है, तो इसमें हो सकता है मे बी 7.8 हो, 8.9 हो, तो उससे ज़्यादा होती है, वो भी अकॉर्डिंग टू द बैंक। ओके,
and four types of deposit account is fixed account. In fixed account, so you know about saving, current and recurring, and now fixed account. fixed account में क्या होता है कि हम अगर मनी एक हम फिक्स करते हैं, बैंक में फिक्स करते हैं, तो उसे हम एक जो कि अगर हमने 2 साल के लिए फिक्स किया है तो उसे हम 2 साल से पहले उस मनी को हम नहीं निकाल सकते। अगर उस पैसे को अगर हमने खर्चे के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं बैंक से, तो हमें क्या होगा, वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट जो निश्चित इंटरेस्ट रेट होगा उतना हमें नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। इन फिक्स्ड अकाउंट मेन थिंग इज, इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड अकाउंट में क्या होता है कि हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलती है। यहाँ हमें सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेंगे, रीकरिंग अकाउंट से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेंगे फिक्स्ड अकाउंट में। इफ़ अगर हमने उसे एक निश्चित समय से पहले उस मनी को अगर बैंक से हमने नहीं निकाला, तो अगर हमने पहले उसे खर्च करने के लिए अगर निकाल लेते हैं हम उस मनी को, तो हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगी वहाँ। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। ओके, so in the previous class we will study about the subsidiary functions of bank. Okay, thank you.